Buvim qanila? Kamiga uyni ovqatlarini shunaqangi sog'inganman. Xonamda bugun mazza qilib dam olmoqchiman. Buving xonalariga kirib ketdilar. Endi shunaqa. Mendan arazladilarmi? Buvingni obdon ko'ngillarini olasan. O'zimiz kelishib olamiz. Buvimni yonida yotaman-ku. Hech qisi yo'q. Senga yonlarida yotolmaysan. Buvingni boshqa xona tayyorlab qo'yganmiz. Buvim bilan gaplashib yotaman. Buving bilan Endi shu yetmay turganda. Nima? Hali qizi ham kelganmi? Zulfiyani qizi yotibdi. Butunlayga. Qancha vaqtga kelding? Sen Shu yerga ko'chiryapman. O'qishimni ham, ishimni ham bolani olib qoladilar. Nega? ular kelmaydilar. Bolani olib qoldilar. Ajrashyapman. Amerikada katta bo'ladi. O'g'lim uchun shu yaxshi ekan. O'ylab ko'rsam. Matluba? Ha, hozir. Matluba! Keldingizmi? Nima gap? Biron foydasi tegadigan ish bo'ldimi? Tinchlikmi? Ke, o'tir. Aybini tan oladi. O'sha yigitlar topilsa, bo'ladi xudo xohlasa. Aniq bo'ladi. Ularning sherigi bo'lmaganim, o'shanda ko'rdim. Ko'rdingizmi o'zi kamerani? Ilohim, mushkulingiz oson bo'lsin. Dadasi, bu kunlar ham o'tib ketadi derding. Qora kunlar ortidan yorug' kunlar keladi derding. Doim aytarding. Matluba, esingdami? Esimda. Chidashing kerak derdim. Tong otdi, oz qoldi. Seni gaplaring menga o'git berardi. Doim o'sha yorug' kunni kutdim. Qamoqda o'tirganimda hammasi yaxshi bo'lar ekan. Odam sabr qilsa, Yorug' kunlarga ham yetib kelyapmiz, dadasi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Men bolalardan xabar olay. bo'pti. Men ham yuz qo'llarimni yuvib chiqaman. Yangi sochiq ilib qo'yganman. Ha, Juda ham yaxshi kun bo'ldi. Onasi, bugun hozir. mayli. begonalarni qo'liga topshirib, bolani begona yurtda ajrashib kelaverasanmi? O'zingdan o'zing bu nima deganing bu, ha? Shu qarorga keldim. Bir og'iz menga aytishing mumkin-ku. Nima men o'lganmanmi? O'zingcha qarorlar qabul qilyapsan. Juda ham o'zboshimcha bo'lib ketibsan. Bu meni hayotim, qizim. Sizlar ham mensiz hamma narsani hal qilibsizlar-ku. Bu ham meni hayotim. Meni bir qadrimga yetishsam, ataylab tashlab keldim. Hech bo'lmasa bolangni olib kel. Aqlingni yig'h. Bola kasal bo'lib qolsa-chi? Xudbin bo'lib ketibsan. O'zlari tuzatib olishadi. Hech qisi yo'q. Tabiat rivojlangan. ड्रामा सीरियल कीचर 2 के न्यू एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरह अपने फैमिली हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़का अपनी माँ से बार बार एक ही बात पर इल्तिजाएं करता जा रहा है और उसे ये बातें बिल्कुल बुरी लग रही हैं कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी अभी तक हो चुका है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ लड़के के भाई को अब लड़की वालों से कॉल आती है और वो उसे बार बार एक ही बात में मफलूज करते रहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके हमारी बेटी की ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात से दो चार किया है। दूसरी तरफ लड़का है कि वो इस बातों से बिल्कुल नामालूम था, वो तो अनजान था, वो तो ज़रा बराबर भी मालूमात इस बारे में रखने से कासिर था। दूसरी तरफ अब लड़की के बाप और उनकी माँ एक ही बात पर अब जिद एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजने से ज़रा सर इनकार करते हुए उन लड़कों वालों को एक ही बात पर उकसा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को तलाक याफ्ता कर दें और तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को और उनकी बेटी की ज़िंदगी को फ्री कर दें ताकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें।
दूसरी तरफ वो लड़की अपनी बेटी को साथ लेकर अपने दादा के घर और बाप के घर आकर यही सोच रही है कि उसने ये गलती तो नहीं कर ली कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ उसके घर वालों के साथ किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लड़के का भाई अभी भी यही बातें सोच रहा है कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बिल्कुल ये बात को अनजान मानते हुए ये कहा है कि मुझे तो ज़रा बराबर भी इस बारे में इल्म नहीं था और जो कुछ भी हुआ है मैं इससे नामालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो नौबत इस हद तक नहीं जानी थी। लड़के की बहन भी यही बातें करती हुई कह रही कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसे इस बारे में ज़रा बराबर में मालूमात नहीं थी। ड्रामा सीरियल केचर 2 के न्यू एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरह अपने फैमिली हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़का अपनी माँ से बार बार एक ही बात पर इल्तिजाएं करता जा रहा है और उसे ये बातें बिल्कुल बुरी लग रही हैं कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी अभी तक हो चुका है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ लड़के के भाई को अब लड़की वालों से कॉल आती है और वो उसे बार बार एक ही बात में मफलूज करते रहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके हमारी बेटी की ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात से दो चार किया है। दूसरी तरफ लड़का है कि वो इस बातों से बिल्कुल नामालूम था, वो तो अनजान था, वो तो ज़रा बराबर भी मालूमात इस बारे में रखने से कासिर था। दूसरी तरफ अब लड़की के बाप और उनकी माँ एक ही बात पर अब जिद एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजने से ज़रा सर इनकार करते हुए उन लड़कों वालों को एक ही बात पर उकसा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को तलाक याफ्ता कर दें और तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को और उनकी बेटी की ज़िंदगी को फ्री कर दें ताकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी बेटी को साथ लेकर अपने दादा के घर और बाप के घर आकर यही सोच रही है कि उसने ये गलती तो नहीं कर ली कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ उसके घर वालों के साथ किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लड़के का भाई अभी भी यही बातें सोच रहा है कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बिल्कुल ये बात को अनजान मानते हुए ये कहा है कि मुझे तो ज़रा बराबर भी इस बारे में इल्म नहीं था और जो कुछ भी हुआ है मैं इससे नामालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो नौबत इस हद तक नहीं जानी थी। लड़के की बहन भी यही बातें करती हुई कह रही कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसे इस बारे में ज़रा बराबर में मालूमात नहीं थी। ड्रामा सीरियल केचर 2 के न्यू एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरह अपने फैमिली हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़का अपनी माँ से बार बार एक ही बात पर इल्तिजाएं करता जा रहा है और उसे ये बातें बिल्कुल बुरी लग रही हैं कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी अभी तक हो चुका है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ लड़के के भाई को अब लड़की वालों से कॉल आती है और वो उसे बार बार एक ही बात में मफलूज करते रहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके हमारी बेटी की ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात से दो चार किया है। दूसरी तरफ लड़का है कि वो इस बातों से बिल्कुल नामालूम था, वो तो अनजान था, वो तो ज़रा बराबर भी मालूमात इस बारे में रखने से कासिर था। दूसरी तरफ अब लड़की के बाप और उनकी माँ एक ही बात पर अब जिद एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजने से ज़रा सर इनकार करते हुए उन लड़कों वालों को एक ही बात पर उकसा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को तलाक याफ्ता कर दें और तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को और उनकी बेटी की ज़िंदगी को फ्री कर दें ताकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। दूसरी तरफ
वो लड़की अपनी बेटी को साथ लेकर अपने दादा के घर और बाप के घर आकर यही सोच रही है कि उसने ये गलती तो नहीं कर ली कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ उसके घर वालों के साथ किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लड़के का भाई अभी भी यही बातें सोच रहा है कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बिल्कुल ये बात को अनजान मानते हुए ये कहा है कि मुझे तो ज़रा बराबर भी इस बारे में इल्म नहीं था और जो कुछ भी हुआ है मैं इससे नामालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो नौबत इस हद तक नहीं जानी थी। लड़के की बहन भी यही बातें करती हुई कह रही कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसे इस बारे में ज़रा बराबर में मालूमात नहीं थी। ड्रामा सीरियल कीचर 2 के न्यू एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरह अपने फैमिली हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़का अपनी माँ से बार बार एक ही बात पर इल्तिजाएं करता जा रहा है और उसे ये बातें बिल्कुल बुरी लग रही हैं कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी अभी तक हो चुका है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ लड़के के भाई को अब लड़की वालों से कॉल आती है और वो उसे बार बार एक ही बात में मफलूज करते रहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके हमारी बेटी की ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात से दो चार किया है। दूसरी तरफ लड़का है कि वो इस बातों से बिल्कुल नामालूम था, वो तो अनजान था, वो तो ज़रा बराबर भी मालूमात इस बारे में रखने से कासिर था। दूसरी तरफ अब लड़की के बाप और उनकी माँ एक ही बात पर अब जिद एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजने से ज़रा सर इनकार करते हुए उन लड़कों वालों को एक ही बात पर उकसा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को तलाक याफ्ता कर दें और तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को और उनकी बेटी की ज़िंदगी को फ्री कर दें ताकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी बेटी को साथ लेकर अपने दादा के घर और बाप के घर आकर यही सोच रही है कि उसने ये गलती तो नहीं कर ली कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ उसके घर वालों के साथ किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लड़के का भाई अभी भी यही बातें सोच रहा है कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बिल्कुल ये बात को अनजान मानते हुए ये कहा है कि मुझे तो ज़रा बराबर भी इस बारे में इल्म नहीं था और जो कुछ भी हुआ है मैं इससे नामालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो नौबत इस हद तक नहीं जानी थी। लड़के की बहन भी यही बातें करती हुई कह रही कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसे इस बारे में ज़रा बराबर में मालूमात नहीं थी। ड्रामा सीरियल कीचर 2 के न्यू एपिसोड में हम देख रहे हैं कि किस तरह अपने फैमिली हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये लड़का अपनी माँ से बार बार एक ही बात पर इल्तिजाएं करता जा रहा है और उसे ये बातें बिल्कुल बुरी लग रही हैं कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी अभी तक हो चुका है वो नामुनासिब था। दूसरी तरफ लड़के के भाई को अब लड़की वालों से कॉल आती है और वो उसे बार बार एक ही बात में मफलूज करते रहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादती करके हमारी बेटी की ज़िंदगी को बहुत बुरे हालात से दो चार किया है। दूसरी तरफ लड़का है कि वो इस बातों से बिल्कुल नामालूम था, वो तो अनजान था, वो तो ज़रा बराबर भी मालूमात इस बारे में रखने से कासिर था। दूसरी तरफ अब लड़की के बाप और उनकी माँ एक ही बात पर अब जिद एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को वहाँ पर भेजने से ज़रा सर इनकार करते हुए उन लड़कों वालों को एक ही बात पर उकसा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को तलाक याफ्ता कर दें और तलाक देकर अपनी ज़िंदगी को और उनकी बेटी की ज़िंदगी को फ्री कर दें ताकि दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी बेटी को
साथ लेकर अपने दादा के घर और बाप के घर आकर यही सोच रही है कि उसने ये गलती तो नहीं कर ली कि जो कुछ उसने अपने शौहर के साथ उसके घर वालों के साथ किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लड़के का भाई अभी भी यही बातें सोच रहा है कि इसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लड़के ने बिल्कुल ये बात को अनजान मानते हुए ये कहा है कि मुझे तो ज़रा बराबर भी इस बारे में इल्म नहीं था और जो कुछ भी हुआ है मैं इससे नामालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो नौबत इस हद तक नहीं जानी थी। लड़के की बहन भी यही बातें करती हुई कह रही कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, उसे इस बारे में ज़रा बराबर में मालूमात नहीं थी।